मैंने उसको कभी फॉलो ही नहीं किया। ভাই আমি ওনাকে কখনো ফলোই করিনি, আনফলো কিভাবে করব? আমরা 2008 সালে স্কুল থেকে চিনি, তখন তো সোশ্যাল মিডিয়া ছিলই না। লোকে বলছে আনফলো করে দিয়েছি, আমি কেবল হেসেছি। লোকে যা ইচ্ছা তাই কথা ছড়াচ্ছে, ফলো না করলে কিভাবে আনফলো করব বলুন তো? अब लोगों का है वो जो मर्जी नैरेटिव बनाकर बेचते रहें या लगाते रहें, वो मतलब उनकी मर्जी है, लेकिन मैंने कभी उनको फॉलो ही नहीं किया, तो अनफॉलो क्या करूँगा। सर खुश तो काफ़ी हूँ। কতটা খুশি? অনেক খুশি। তরুণরা পারফর্ম করছে। আমার কাছে আসলে ফলাফল অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমার কাছে জরুরি হলো কিভাবে খেলছি। এখানে 3 ম্যাচে যেমন খেলেছি সামনেও এমন খেলতে চাই, লোককে বিনোদন দিতে চাই। এভাবে চালিয়ে যেতে পারলে বেশিরভাগ ম্যাচ জিততে পারবো। बिल्कुल मतलब अभी इस बारे में আসলে আমাদের চিন্তা সামনের সিরিজ বাংলাদেশে এবং পরেরটা ওয়েস্ট ইন্ডিজে, এই 2 সিরিজ নিয়ে। এই 2 সিরিজে বেশিরভাগ উইকেট স্পিন সহায়ক। এশিয়া কাপ দুবাইয়েও স্পিন সহায়ক হবে, সেখানেই অনুশীলন হয়ে যাবে। শ্রীলঙ্কাতেও কাছাকাছি উইকেট থাকবে। 2-3 सीरीज होम में है, तो कोशिश करेंगे किसी 1 या 2 सीरीज में ऐसी पिचेस बनाएं जो श्रीलंका में मिल सकती हैं। सर एक चीज़ तो पक्की है कि অধিনায়ক আমি থাকলে এভাবেই খেলতে চাইব। দুনিয়া এভাবেই ক্রিকেট খেলছে, সামনেও এভাবেই খেলে যাব। বোলার ব্যাটারদের যতটা চাপে রাখতে পারবেন তত বেশি আপনার পক্ষে ফল আসার সম্ভাবনা থাকবে। নিউজিল্যান্ডেও এই কৌশল ছিল, কন্ডিশনের কারণে সম্ভব হয়নি, তবে শিক্ষা নিয়েছি সেখান থেকে। ফেয়ারলেস থাকতে হবে, সাথে কেয়ারলেসও হওয়া যাবে না। এই সিরিজে এটা করতে পেরে ভালো লাগছে। फॉलो किया जाए, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी ऐसी थी जो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ जो लड़के गए थे उन्होंने सीखा कि आपको फेयरलेस तो रहना है, लेकिन साथ केयरलेस नहीं रहना। तो वो एक चीज़ जो है ना इस पूरी सीरीज़ में बहुत अच्छी लगी है। अब अभी वो मतलब 1 साल 1 বছর বাকি বিশ্বকাপের। এখনই বলতে পারছি না এরাই বিশ্বকাপ খেলবে কিনা, তবে বেশিরভাগ এরাই থাকবে। বেশি সুযোগ দেবে সবাইকে। বিশ্বকাপের আগে যেন একাদশের সবার সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা থাকে। 25 থেকে 30 ম্যাচ করে খেলেছে সবাই। যে দলই হোক না কেন সবার জন্যই সুযোগ থাকবে। कोशिश यही रहेगी कि कोर यही रहे, लेकिन जाहिर बात है कोई भी आ सकता है टीम में, और जो ये वे है वैसे खेलकर कोई भी इस टीम में आ सकता है, क्यों नहीं। मतलब सबके लिए दरवाजे तो खुले ही हैं। सर इस पूरी सीरीज में देखेंगे ना तो हारिस ने काफ़ी ज़्यादा পুরো সিরিজেই হারিস দুর্দান্ত খেলেছে, মগজ ব্যবহার করে খেলেছে, ক্যালকুলেটিভ ঝুঁকি নিয়েছে। সাইম হাসান সবাই ভালো করেছে। ওরা 3 জন ম্যাচ উইনার। আমরা প্রসেস ফলো করব, প্রসেস অনুযায়ী ক্রিকেট খেলতে চাই, তাহলেই দল জিতবে, আর জিতলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। मैच विनर बनाना है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मुझे लगता है वो 3 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए वंडर्स कर सकते हैं। और दूसरा क्या सवाल था, सॉरी? हाँ वो सर वो चीज़ें ऐसी हैं कि हम जो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि इस प्रोसेस से हमने क्रिकेट खेलनी है, और वो एक ऐसा प्रोसेस है अगर हम उसको फॉलो करते रहेंगे तो उसमें टीम जीती रहेगी, और जब टीम जीती रहेगी तो ऑटोमेटिकली सर वो जो गोल है वो भी अचीव हो जाएगा। सर अभी तो काफ़ी हैप्पी हूँ, मतलब 8 मैचेस में। और जो দলে এখন যে পরিবেশ তা দারুণ। একটু সময় লাগবে, তবে আমরা এভাবেই আগাতে চাই। কন্ডিশনকে সম্মান করব, মডার্ন ডে ক্রিকেট খেলব। মডার্ন ডে ক্রিকেট এমনই, পার স্কোর যা আছে তার চেয়ে 10 থেকে 15 রান বেশি করলে বোলারদের বেশি সুযোগ দেয়া যাবে। একই কথা বোলিংয়েও, পার স্কোরের চেয়ে 10 থেকে 15 রান কম রাখতে হবে, ব্যাটারদের কাজ সহজ হবে। যে কন্ডিশনে যেমন পার স্কোর হবে সেটাই ফলো করব আমরা। मतलब एडवांटेज मिल सके। और जब बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको पार स्कोर से 10-15 रन कम बनाने हैं, तो आपके बैट्समैनों को इजी रहे। तो हमारी तो ये कोशिश है, जिस भी कंडीशन में जाएंगे, जैसी भी होगी, उसका जो पार स्कोर होगा हम उसको ही फॉलो करेंगे। सर लाहौर का क्राउड, লাহোরের দর্শক আমরা খেললেই আসে। আমরা যখনই ক্রিকেট খেলি এমনই প্রত্যাশা করি। একদম হাউসফুল ছিল, তাদের অনেক ধন্যবাদ। আমরা চেষ্টা করব এমন ক্রিকেট খেলার যেন তাদের বিনোদন দিতে পারি এবং পাকিস্তানকে জেতাতে পারি। ধন্যবাদ তাদেরকে। आज तो माशाल्लाह हाउसफुल था, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू है, और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आते रहें। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी क्रिकेट खेलें जिससे आपको इंटरटेन करते रहें और पाकिस्तान को मैच जिताते रहें। और थैंक यू वेरी मच उनका आने का। PSL मतलब आप कह सकते हैं कि T20 टीम में आने के लिए টি-20তে PSL জরুরি, সাথে ঘরোয়াতেও পারফর্ম করতে হবে। এখানে কেউ নেই যারা ঘরোয়াতে পারফর্ম করেনি। PSL আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সবচেয়ে কাছাকাছি, ফলে এটাকে গুরুত্ব দেয়া হয় টি-20 দল বানাতে গিয়ে। ঘরোয়াতেও পারফর্ম করাটা জরুরি। क्लोजेस्ट है, तो उसकी परफॉर्मेंस तो मतलब अगर आपको T20 टीम बनानी है तो वो आपको देखनी ही पड़ती है। लेकिन हाँ ज़रूर इसमें डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है वो भी साथ काउंट जरूर होती है। আমাদের 3 ওপেনার ফকর, সাইম এবং শাহিদ জাদা।
এরা তো ওপেনই করছে। হারিসকে আমরা তিনেই বিবেচনা করছি, কারণ কিপিং করে সে, কিছুটা বিশ্রাম দিতে চেয়েছি। হাসানকে আমরা মিডল অর্ডারে চাই। সিচুয়েশনের ডিমান্ড বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এই সিরিজে অনেক সময় 10 ওভারে 1 উইকেট গিয়েছে। হাসান মিডলে ভালো করেছে। সে পিএসএল এ স্পিনারদের বিপক্ষে সফল ছিল এই সিরিজেও, তাই সে মিডল অর্ডারে কার্যকরী হয়েছে। তাই ব্যাটিং অর্ডারকে আমরা ফ্লেক্সিবল রেখেছি। सिचुएशन डिमांड कोई करती है किसी को नीचे से ऊपर जाने में तो वो ज़रूर जाएंगे। और मैं मतलब पर्सनली 4 पे ही खेलना था इस सीरीज़ में, लेकिन आपने पहले मैच में 5 पे 2 थे, मैं 4 पे गया, लेकिन उसके बाद हम 10 ओवर में मतलब हमारा 1 आउट था। तो उस टाइम पे बेस्ट ये है कि स्पिनर्स लगे हों, और आपने हसन को देखा है कि वो पूरी पीएसएल में और इस सीरीज़ में भी स्पिनर के खिलाफ कितना डेंजरस है। तो हम वो मतलब बैटिंग ऑर्डर को वो फ्लेक्सिबल रखते हैं कि किसी भी प्लेयर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो जाएगा। मैंने उसको कभी फॉलो ही नहीं किया, मतलब इंस्टा पे कभी फॉलो ही नहीं किया, तो उसमें अनफॉलो क्या। और मेरा वो दोस्त है 2008-9 का, स्कूल का। तब तो सर सोशल मीडिया था ही नहीं, ना इंस्टा था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था। तो बस अब ये लोगों का है कि मैंने उनको अनफॉलो कर दिया। अभी मेरी थोड़ी देर आने से पहले उनसे बात हुई, तो हम ये चीज़ें देखकर सर हंसते ही हैं। और अब लोगों का है कि वो जो मर्ज़ी नैरेटिव बनाकर बेचते रहें या लगाते रहें, वो मतलब उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने कभी उनको फॉलो ही नहीं किया, तो अनफॉलो क्या करूँगा। सर खुश तो काफ़ी हूँ, और जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि यंग लड़कों सब ने परफॉर्मेंस की। सर रिजल्ट मैं अभी सोच रहा हूँ कि रिजल्ट जो है ना वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि हम खेलते किस तरह क्रिकेट। जो इन 3 मैचों में क्रिकेट खेली है, हमें गोइंग फॉरवर्ड ये क्रिकेट खेलनी है और लोगों को एंटरटेन करना है सर, और लोगों को एंटरटेन करना है सर। और अगर हम इस तरह कोशिश करेंगे कि दूसरी टीम को प्रेशर में लाएँ तो मोस्टली मैचेस जीतेंगे। ये बिल्कुल मतलब अभी इस बारे में हम ज़रूर सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट बांग्लादेश जाना है और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़। तो वहाँ पर मोस्टली पिचेज़ आपको ऐसी मिलती हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स खेलने पड़ सकते हैं। तो कोशिश ये रहेगी उसके बाद फिर अगर एशिया कप होता है तो वो भी दुबई में है, जहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हमारी 2-3 सीरीज़ होम में है, तो कोशिश करेंगे किसी 1 या 2 सीरीज़ में ऐसी पिचेज़ बनाएं जो श्रीलंका में मिल सकती हैं। सर एक चीज़ तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हूँ हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मैं मतलब मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। आपको बॉलर्स को अंडर प्रेशर करना ही करना है, और एज ए बॉलिंग यूनिट आपको बैट्समैनों को आउट करने की कोशिश करनी ही करनी है, उससे ही रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर आप बॉलर्स को अंडर प्रेशर और बैटर को अंडर प्रेशर रखेंगे तो रिजल्ट मोस्टली आपकी तरफ ही जाएंगे। और आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी हमने यही मतलब कोशिश की थी कि इसी वे ऑफ क्रिकेट को फॉलो किया जाए, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी ऐसी थी जो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ जो लड़के गए थे उन्होंने सीखा कि आपको फेयरलेस तो रहना है लेकिन साथ केयरलेस नहीं रहना। तो वो एक चीज़ जो है ना इस पूरी सीरीज़ में बहुत अच्छी लगी है। सर इस पूरी सीरीज़ में देखेंगे ना तो हारिस ने काफ़ी ज़्यादा मतलब वो एक जो उसके साथ चीज़ लगाई जाती है कि वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं करता। तो इस पूरी सीरीज़ में आप देखेंगे पहले मैच में 5 पे 2 आउट थे, उसके बाद उसने कैलकुलेटर रिस्क लिए और कैलकुलेटर बैटिंग की, और आज भी। और जो कि मुझे मतलब काफ़ी मुझे हारिस और साइम और मतलब हसन मेरे लिए वो 3 ऐसे प्लेयर हैं कि मुझे अपनी कैप्टनसी में उनको मैच विनर बनाना है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मुझे लगता है वो 3 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए वंडर्स कर सकते हैं। और दूसरा क्या सवाल था, सॉरी। हाँ वो सर वो चीज़ें ऐसी हैं कि हम जो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि इस प्रोसेस से हमने क्रिकेट खेलनी है, और वो एक ऐसा प्रोसेस है अगर हम उसको फॉलो करते रहेंगे तो उसमें टीम जीती रहेगी, और जब टीम जीती रहेगी तो ऑटोमेटिकली सर वो जो गोल है वो भी अचीव हो जाएगा।